آغاز میں آپ کو افسوسناک خبر دیں، راولپنڈی کے مضافاتی علاقے ترلئی کلاں کی مسجد میں فتنہ الخوارج کا خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آور کو مسجد کے گیٹ پر روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ زخمیوں اور شہداء کی میتوں کو پیمز اور پولی کلینک پہنچا دیا گیا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی جانب سے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ وزیر اعظم نے ذمہ داروں کا جلد از جلد تعین کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی میں مضافاتی علاقے ترلئی کلاں کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ فتنہ الخوارج کے خودکش حملے میں 31 نمازی شہید، 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ حملہ آور کو مسجد کے گیٹ پر روکا گیا، اس نے پہلے فائرنگ کی پھر خود کو اڑا لیا۔ زخمیوں اور شہداء کی میتوں کو پیمز اور پولی کلینک پہنچا دیا گیا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ نے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم کا المناک واقعے کے ذمہ داروں کو جلد از جلد ان کا تعین کر کے حکم جاری کر دیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی ہر کارروائی کے پیچھے بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ۔ راولپنڈی دھماکے میں بھی خودکش بمبار کی شناخت ہو گئی۔ بمبار نے افغانستان سے تربیت لی ہے۔ سمیرہ خان سے تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ سمیرہ، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ حملہ آور کا جو تعلق ہے وہ بھارت اور افغانستان سے ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی ہر کارروائی کے پیچھے بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ ہے۔ راولپنڈی دھماکے میں بھی خودکش بمبار کی شناخت ہو گئی ہے۔ بمبار نے افغانستان سے تربیت لی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے۔ راولپنڈی کے مضافاتی علاقے ترلئی کلاں کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج کے خودکش حملے میں 31 نمازی شہید جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ حملہ آور کو مسجد کے گیٹ پر روکا گیا، اس نے پہلے فائرنگ کی پھر خود کو اڑا لیا۔ جی ہاں، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ راولپنڈی کے مضافاتی علاقے ترلئی کلاں کی مسجد میں فتنہ الخوارج کا خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید ہو گئے ہیں، 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آور کو مسجد کے گیٹ پر روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ زخمیوں اور شہداء کی میتوں کو پیمز اور پولی کلینک پہنچا دیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مضافاتی علاقے ترلئی کلاں کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ فتنہ الخوارج کے خودکش حملے میں 31 نمازی شہید ہو گئے ہیں، 100 سے زائد زخمی ہیں۔ حملہ آور کو مسجد کے گیٹ پر روکا گیا، اس نے پہلے فائرنگ کی اور پھر خود کو اڑا لیا۔ زخمیوں اور شہداء کی میتوں کو پیمز اور پولی کلینک پہنچا دیا گیا ہے۔ فتنہ الخوارج کا نماز جمعہ ادا کرنے والے شہریوں پر یہ بزدلانہ وار سامنے آیا ہے۔ ترلئی کلاں کی مسجد میں خارجی حملہ آور نے خودکش دھماکہ کر دیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دہشت گرد کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے پہلے فائرنگ کی پھر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق خودکش حملے کے وقت نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ نے شہداء کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ پولیس اور ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو پیمز اور پولی کلینک اسپتال منتقل کیا ہے۔ عثمان نے ہمیں جوائن کیا۔ عثمان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کیجویلٹی کتنی ہوئی ہیں ابھی تک؟ دیکھیں، اس وقت میں پیمز اسپتال میں موجود ہوں اور یہاں پر جب ہم ابتدائی طور پر آئے تو زخمیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایمبولینسز کے ساتھ ساتھ لوگ پرائیویٹ گاڑیوں میں بھی اپنے پیاروں کو یہاں پیمز اسپتال میں لے کر آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس موبائل وینز بھی زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ اور اس وقت میں ایمرجنسی کے بالکل سامنے موجود ہوں اور یہاں پر جو ایمرجنسی کے میں جو بیڈز کی تعداد تھی وہ مکمل طور پر بھر چکی تھی، اور پھر جو اولڈ ایمرجنسی ہے جس کو اب OPD قرار دیا گیا ہے، وہاں پر جو وارڈز ہیں اس میں بھی زخمیوں کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اور پیمز اسپتال کی انتظامیہ کے حوالے سے کہنا ہے کہ 80 سے زائد زخمی اب تک پیمز اسپتال میں منتقل ہو چکے ہیں، جبکہ جو کیجویلٹیز کی بات کریں تو 25 افراد کی جاں بحق ہونے کی تصدیق پیمز انتظامیہ کی جانب سے کر دی گئی ہے۔ اور ضلعی انتظامیہ کا اس حوالے سے موقف ہے کہ جو 31 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ کی ضلعی انتظامیہ نے تصدیق کی ہے، جو دیگر اسپتالوں میں جن کی موت واقع ہو چکی ہے۔ آپ ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں شہزاد بھی جوائن کر چکے۔ شہزاد، آپ بتائیے گا ابھی تک کون کون سی اپڈیٹ سامنے آئی ہیں اس دھماکے کے حوالے سے، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के इलाके तराई करला में, जहाँ पर आज दोपहर तकरीबन 1:15 बजे के करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पर इमाम बारगाह के अंदर जो है वो खुदकुश हमला हुआ, जिसमें जो है वो मुतअद्दिद हिलाकतें और कई अफराद जो है वो जख्मी हुए। इस वक्त इलाका सोगवार है और यहाँ पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG इस्लामाबाद खुद इस वक्त जो है वो इस इमाम बारगाह के अंदर मौजूद हैं। इब्तदाई जो तहकीकात सामने आई हैं, ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि खुदकुश बमबार जो यहाँ पर की जानिब से और उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो इब्तदाई तौर पर अफगानिस्तान आने और जाने के हवाले से जो है वो सामने आई हैं। और ये जो खुदकुश हमलावर था, ये मुतअद्दिद मरतबा जो है वो अफगानिस्तान जाता रहा है और वहाँ से कुछ अर्सा पहले जो है वो वापस पाकिस्तान दाखिल हुआ था। और हमेशा की तरह इस मरतबा भी जो है वो अफगानिस्तान से ही इस खुदकुश हमलावर की जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं उसमें इसका जो है वो तल्लुक सामने आ रहा है। इस वक्त यहाँ पर ठीक है शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया सभा के लिए वक्त निकालने का। तारिक साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हर कार्रवाई के पीछे एक बार फिर से भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ सामने आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जैसे आपके नुमाइंदे बता रहे थे ये कई दफा अफगानिस्तान गया, वहां से वापस आया। देखिए, हम इन सारे अफगानियों को वापस क्यों नहीं भेज रहे? मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये 100% अफगानी वापस नहीं जाते, पाकिस्तान में अमन बहाल नहीं हो सकता। और कब तक देखें हम अपने मासूम जानों का ये कुर्बानी देते रहेंगे। देखिए कितनी बड़ी ऑपरेशन हमें करना पड़ा बलूचिस्तान में, और ये BLA वाले और अफगान तालिबान का पाकिस्तानी तालिबान का ये गठजोड़ है, और इनके पीछे हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और इजराइल है। इसमें तो कोई शक ही नहीं रह गया। तो ये पाकिस्तान को क्योंकि कन्वेंशनल तरीके से अंडरमाइन नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान क्योंकि न्यूक्लियर ताकत है, उसकी फौज की बहादुरी, जवामर्दी और प्रोफेशनलिज्म का सिक्का पूरी दुनिया मान चुका है। तो ये ओछे हथकंडों से पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। पाकिस्तान की अवाम ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं और वो पाकिस्तान के लिए हर हद तक कुर्बानी देने को तैयार है। बट ये हुकूमत वक्त का काम है कि बॉर्डर को इफेक्टिवली सील करे और एक एक अफगानी को चुन के वापस भेजना करे। और ये देखें, ये पता करेंगे कैसे बार बार पाकिस्तान आता रहा। और वो जो नुमाइंदे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इमिग्रेशन कंट्रोल करते हैं, अगर उसने गलत तरीके से को पाकिस्तान में एंट्री अलाउ की, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। देखें, जितनी काली भेड़ें पाकिस्तान के अंदर हैं, तो किसी तरीके से इनसे सिंपैथी रखती हैं, इन्हें फैसिलिटेट करनी है, इनका गंध हमें पाकिस्तान से साफ करना होगा, और तभी पाकिस्तान में अमन आ सकता है। मेजर साहब साथ ही रहिएगा, हमें सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया समा का वक्त देने का। अब्दुल्ला साहब, एक दफा फिर फितना अल खवारिज ने ये नाकाम और नापाक कोशिश की है और इसका भी ताल्लुक अफगानिस्तान की सरजमीन से जाकर मिलता है। कैसे देखते हैं आप, जिस तरह बलूचिस्तान का वाकया पेश आया, उसके बाद ये वाकया पेश आया है, तो ये जो गिरोह है अल खवारिज, इस वक्त ये इनकी हिकमत अमली जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, मेरे ख्याल में हर आंख जो है वो अश्कबार है। मैं और मेरी पार्टी तहरीक जवानान इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, हमने देखा बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन इस टाइम पे अब मेरे ख्याल में सियासतदानों को दहशतगर्दी के खिलाफ एक जिसको कहते हैं ना, यकजान दो कालिब बनकर जो है वो काम करना पड़ेगा। और अगर ये हम नहीं काम कर पाएंगे तो फिर ये दहशतगर्दी जो है, हमारी अंदर की जो कमजोरियां हैं, अंदर की जो लड़ाइयां हैं, उनका ये फायदा उठा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है, जाहिर है इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें जो हैं वो भी शामिल हैं। हमें मालूम है कि भारत और इजराइल का गठजोड़ जो है वो तमाम दहशतगर्दों के साथ है। अभी आप ये कहना सब फजूल बात है कि दहशतगर्द जो है BLA, कोई BLR, कोई जो है TTP, ये सब एक हैं। ये सब अफगानिस्तान से जो है चल रहे हैं और भारत इनको फंड करता है। देखिए, इस टाइम पे जो मेरी इतलात हैं, जो 12 शहरों के ऊपर हमला हुआ बलूचिस्तान में, उसमें $1-1 लाख जो है वो उन्होंने फी शहर जो है वो दिया। अब दूसरी जानिब जो है दहशतगर्द जो है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और दहशतगर्दों को यक के बाद दीगरे जहन्नम वासिल करना शुरू किया, तो अब जो है ये इनके पैर उखड़ गए हैं। अब ये भाग रहे हैं। अब ये कभी कचहरी चौक की तरफ जाते हैं, तो कभी जो है मस्जिद उल कुबरा के अंदर जो है वो नमाजियों को शहीद करते हैं। इस टाइम पे कौम को जो है मसलक, मजहब, रंग, नस्ल, सियासी मैदान, ये सब से फारिग होके एक
मिलत बनकर हमें इसका मुकाबला करना है। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का सहारा बनना है। इस टाइम पे पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बन रहा है, जैसे कि फील्ड मार्शल साहब ने कहा। हार्ड स्टेट का मतलब यह है कि हम दुश्मनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, लेकिन इन सब के अंदर अवाम को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। उनको अपने अंदर की काली भेड़ों को देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि आखिर कश्मीर के अंदर कल पूरे पाकिस्तान में जो था, पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज था। भारत 1 साल बैठ के इंतजार करता है कि यौम यकजहती कश्मीर को सैबोटाज करे, लेकिन जब उसकी तमाम कोशिशें जो हैं वो 5 फरवरी को नाकाम हो जाती हैं। ये चीजें उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इस वजह से उन्होंने इस्लामाबाद को उस वक्त टारगेट किया जब उज़्बेकिस्तान के सदर जो थे वो पाकिस्तान के दौरे के उसे खत्म करके वापस तशरीफ ले जा रहे थे। ये एक दुनिया को पैगाम देना चाहते थे, ये दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपको पॉइंट आ चुका है, मजीद भी इस पर आपसे बात करेंगे। आप भी साथ मौजूद रहिएगा, तारिक साहब आप भी साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस नवाज साहब, भारत जो है वो तो कभी भी बाज नहीं आता और हमेशा उसको मुंह की खाना पड़ती है, और उसने अब अफगानिस्तान को जो है वो भी अपने साथ मिला लिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से फंड किया जाता है। उनका गठजोड़ एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तो ये क्लियर हो है कि भारत, उसके बाद पाकिस्तान, ये आपके तालिबान, ब्रिटेन, हिंदुस्तान और ये कौमी यकजहती कमेटी, ये सब मिले हुए और सब मिलकर आप ये देखें ना, पेशावर जो कोयटा में जो ऑपरेशन हमने मारे 16, उनके पास से जो वेपन एमुनिशन निकला है, ये एक इंडिविजुअल के पास खुद ये के पास 10 से 15 लाख के ऊपर था। राइफल जो है अमेरिकन 16 फौजी ने, ये बहुत महंगी है। उसके बाद नाइट्रिन कवर इनके पास है, वायरलेस इनके पास है, दूसरे ड्रेस के पहनते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, स्नाइपर राइफल है। तो ये तमाम चीजें काउंट करें तो ये कहते हैं हमें ऐसा से महरूमी है। ये कहाँ से ये भारत इनको दे रहा है, वो फंडिंग कर रहा है अपने में भूल जगह। इसलिए अभी आप ये देखेंगे इस वक्त आ गया, अभी हमने कोई प्रॉपर लाइमल बना के हमें इनके खिलाफ ऑपरेशन करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहेगा, मेजर तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आपसे मैं पूछूंगा, ये दहशत गर्दों का इबादत गाहों को निशाना बनाना किस हिकमत अमली की अक्कासी करता है? पैसे के किराए के कातिल हैं, इन्हें पैसे दे के जो मर्जी इनसे करा लें। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, दहशत गर्दी की महामारी अफवाज जो है पिछले 2 दहाइयों से ज्यादा नबर आजमा है, और कब तक हम इन्हें टॉलरेट करते रहेंगे? हमें ये जो 3 का ट्राई का नेक्सिस है, ट्रायो है, इंडिया, अफगानिस्तान और जो है इजराइल, ये लातों के भूत है, ये बातों से बाज नहीं आएंगे। हमें जितने भी इनके ठिकाने हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान में जहाँ ऑपरेशनली वहां से ऑपरेट होते हैं, जहां से इनको फाइनेंस किया जाता है, हमें वो सब ट्रेस करना चाहिए। जो इनके हैंडल रहे हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करना होगा। देखिए, पाकिस्तानी अवाम हम वो जो है पाकिस्तानी अफवाज के साथ जुड़ के हमेशा खड़े रहे हैं। उन्होंने बेतहाशा और बेबहा कुर्बानियां दी हैं, और कब तक हम ये कुर्बानियां देंगे? हमने जो हमारे अंदर काली भेड़े हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उनका सफाया करना होगा। और फिर जहां पे इनके बेस ऑफ ऑपरेशन है, जहां से पैसा आता है, हमें वो लाइनें उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट काटनी होगी। और ये तीनों मुल्कों को बड़ा सख्त पैगाम देना होगा कि अगर आपने तीनों मुल्कों को बड़ा सख्त पैगाम देना होगा। हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अब्दुल्ला हमीद कुल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।